So thank you so much for your time today. But before we begin, I'd like to share a bit about Prabha Khaitan Foundation and Ehsaas. Prabha Khaitan Foundation, instituted in the year 2000, is a registered public charitable trust. As an NGO, the foundation promotes art, culture, education, wildlife conservation, and literature through various events and activities, and also spreads awareness about gender equality and women empowerment. We at Prabha Khaitan Foundation subscribe to the view of UNESCO. We feel that placing culture at the heart of development policy constitutes an essential investment in the world's future. We celebrate cultural diversity in form of languages, music, literature, visual arts, dance, drama, oral traditions, and other traditional forms. Our founder, late Dr. Prabha Khaitan, was an eminent entrepreneur, philanthropist, social worker, a writer, and a feminist. She was actively involved in initiating the further the cause of women empowerment. Her vision of working for a better tomorrow drives our organization, and her firmest words, Karm hi Jeevan hai, that is, work is life, inspires all of us. The objective of the foundation is to create an enabling structure to carry out activities on our own and through collaboration, promote networking among communities in order to create the cultural capital. So we have various boutique events, and the main aim of Prabha Khaitan Foundation is to indulge people in mentally stimulating conversations and provide platforms to the artists. The exchange of such magnitude and prolific ideas result in forward-looking creators of our country. We undertake collaborative projects, literary activities with various universities and like-minded people and institutions across the globe. These events bring renowned authors and artists to interact with individuals from different walks of life. Sir, I'd like to share that in a recent survey by Reuters, they claim that more than half of the languages spoken in India by more than 1.3 billion people will die out in the next 50 years. Needless to say, when a language is lost, the corresponding culture is killed. With this aim to protect the languages from dying, we have incorporated various boutique literary events from Hindi to Bangla to Punjabi, Marathi, Odia, Kannada, Telugu, Tamil. We work in some of the other way to keep the soul of these languages and culture alive. The Ehsaas Woman is an initiative of Prabha Khaitan Foundation, is a conglomeration of women from all walks of life who are graceful in their own ways and inspire others for the betterment of the society. Agra, Ahmedabad, Ajmer, Amritsar, Bengaluru, Bhubaneswar, Bilaspur, Chandigarh, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Jodhpur, Pune, Raipur, Ranchi, New York, London, Oslo, Birmingham. These are just the name of few cities where we work in, almost across 30 cities in India and across the globe. And I'm very happy to share here, sir, that we work in collaboration with the British Council, the Oxford Business College, Edinburgh Napier Society, University of Turin, Italy, University of Oslo, Norway, Hindi UK Samiti, and Eastern Zonal Cultural Center. So, once again, on behalf of Prabha Khaitan Foundation and Ehsaas Women, I welcome you here on this evening. And now, over to Monica Bhagwagar from Nagpur for the rest of the proceedings. Thank you, Apra. I'm audible? Yes, you are. Right. Shri Nitin Gadkari, a name that infuses positivity, dedication, and sincerity. I am personally delighted to welcome you, sir, our Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji, Minister of Transport and Highways and MSME. Mr. Gadkari really needs no introduction. He is a name which is very, very well known across the country and is very much admired, particularly in Nagpur. He dons many different hats and he's all the time on his feet, thinking and planning all the time. His achievements are far too many to list here because we want to save every bit of time to actually listen to him.
He has been a guide, a mentor, and has time for everyone. And above all, he has been a friend to Nagpur. Thank you so much, sir, for agreeing to speak to us and sparing your valuable time. A very, very warm welcome. It really means much to us to have you here. Namaskar and welcome. Thank you. So, without much ado, we will go ahead with our question and answer session that I'm basically looking forward to listening to you. The most burning issue right now, which is our economy during post COVID. For this, sir, we need you to share your thoughts with us. So please go ahead. All dear friends, the whole world is facing the crucial problem of this COVID-19. India is also facing this problem. And now there is a lot of fear, frustration, and negativity in the mind of the people. Now, this is the time that we need to create positivity, sakaratmakta, in the mind of the people. Positivity is very important. And for that purpose, we need self-confidence. Actually, our history indicates before 47 and after 47, our society and country face lot of crucial problems. We already had faced the 3 war against Pakistan, then one against China, then we faced lot of economic crises, we faced floods, different type of natural calamities. We have faced the problems. So first of all, we need to create positivity and self-confidence in the mind of the people that 100% we will win this war against COVID-19. This is very important because this negativity and frustration is creating a lot of problem. People start from Mumbai and walking up to Patna and Lucknow, going back to their house because of fear. This is not the good situation. In the scenario, we need to first of all create positivity, self-confidence in the mind of the people. And I am confident that we will 100% win this war. At the same time, because of COVID-19, we are facing economic war. And particularly, I really admit the thing that first of all in the house, maximum problems which are in the small families, poor families, they actually faced by the ladies, those who are in the houses, those who are facing the problems because it is difficult for them to survive. At that time, they have to face the problem, but they are taking all the pain and always try to protect the people of their family. So presently, I feel that the positivity and self-confidence is the most important thing for the society. And I will request all of you as a social worker, because social worker is a definition of a person who is dedicated his services for the society. Social consciousness, social awareness, and social responsibility. These are the three important things where we are always doing the thing on the basis of that. What your foundation is doing, awareness and creating new innovation, new training, new skill, giving to the women entrepreneurs, particularly the empowerment of women empowerment, exactly you are doing, and by which you are giving an appropriate vision for all of them to stand economically, stand socially, even stand politically in the life. So I feel that this is the time that we need to think about our economy because it is a crucial subject. Swami Vivekananda's famous statement I always remember that no philosophy can be taught to empty stomach. And now this is the time that we are facing the economic crisis. We need to find out the way out for that. And that is Atmanirbhar Bharat is the dream of our Prime Minister. And where Atmanirbharta means the Bharat is free from hunger, free from poverty,
For that reason, we need to create more employment potential. And without employment potential, we cannot create employment potential, we cannot eradicate the poverty. And for that reason, I will request to all of you that the women empowerment is related with economic problem. So this is the time for all the women leadership to give an appropriate vision of self-sustainable life, and actually that is self-reliance or life to the people by and large. And we need to plan on that line to give economic solution by which using different type of skill, how it can be possible for all the social organization who are committed for the society, and particularly for downtrodden, those who are socially, economically, educationally backward, particularly the ladies entrepreneurs are very important as a stakeholder for the society. So I will request you in this particular atmosphere, it is the time for a to social organization or a foundation like you, that how we can create economic opportunity to the particularly the women entrepreneur, and how we can create more employment potential. My only request to you is to plan about the rural agriculture tribal India, the 115 aspirant districts. Your skill, your innovation, your research, your vision for business, your vision for economy, that can be really a great thing which can give a survival to lakhs of women entrepreneurs who are in the rural agriculture and tribal area. If something you can possible, you can do it for them. It will be nothing like that. So my request is, as a foundation, if it is possible for you, you do it. As a government, we will support you. And this is very important. And this your contribution will be a great contribution for the not only point of view, social work point of view, but where you are giving food, shelter, that is exactly to the poor people, those who have, it is very difficult to survive. And because of COVID-19, those who are already affected. So this can be a good thing which already you are doing it. I don't know too much about it, but as a minister, I will assure you that I will support all the good activities where you need our help. 100% we will help you. I'm giving my best wishes to you. Be safe and create positivity and self-confidence. We will face the this war, and 100% with positivity and self-confidence, we will win this war against COVID-19. At the same time, we will win economic war. That is exactly the spirit country needs. I always remember one of the song of Atal Bihari Vajpayee, "Kadam se kadam milakar chalna hoga," and the second song from कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. Third is हम होंगे कामयाब. So this positivity we need to create in the society, and 100% people like you who can contribute for that. Thank you. Really, that was just nice and motivating. Thank you so much. But right now, a lot of women are watching you and hearing you. And most of us here are women entrepreneurs and professionals. And we request you to please elaborate a bit more as to what has the government planned for the women entrepreneurs. Actually, there are a lot of plans. Mm. Or particularly, what my suggestion is, because it is in detail, if you can go on our site, or best way is on your city unit, you can call the district officer of MSME or deputy director of MSME in that area, and call the officer of Khadi Gram Udyog Mission. And also, you give me the application, I will instruct them. You go and approach them and organize a function, that what type of business, what type of schemes of governments is already is having there, by which they can get employment, they can get business, they can resolve the problems. So definitely in detail, there are a lot of schemes are there. In government supply, we are giving priority for women entrepreneurs, and particularly those who are manufacturing different type of quality materials.
where government is purchasing, we are giving special priority for industries where the proprietor, particularly the women proprietors are there. At the same time, by making the women self-help groups, they are doing lot of things. You have actually a lot of women, they have different type of skill. Some of the skill is related with textile. There are actually, I know lot of women who are doing this pure silk sarees and materials, designing, product designing. There is a lot of potential and lot of successfully they are doing. You can make a lot of things, and there is already MSME has got a lot of scheme where we are ready to support you. We are ready to support you as a loan. CDB is there, banks are there, MSME is there, subsidies on this, all this project is there. So my suggestion, you go into the details and they will present you all the schemes. They will tell you about the market potential. But I know at your own also you can find out where is the market is available. And for that purpose, we are ready to support you. Definitely, it can be helpful for them also. But most important thing is to create jobs for different women who are in the society having the skill. If you can support them, if you can facilitate them, and 100% that will be great contribution from your organization to the society. And our people will give all programs, all schemes which are related with the women entrepreneurs, and we are ready to support for all these things. Anytime if the problem is there, you come to me, I will resolve your problem. So nice of you. Thank you so much. So आत्मनिर्भर भारत, जैसे आपने कहा, ये हमारी सरकार का एक सपना है, एक लक्ष्य है, और आर्ट्स एंड कल्चर इसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है. Sir, our artists, due to COVID, have taken a huge setback and a nosedive. क्या आप इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे? देखिए, आर्ट एंड कल्चर ये तो पैशन है ही, और ये कहते हैं हमारे बीच में कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट. उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी. यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज. और इसलिए प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है. अभी जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी, ये अपने यहाँ से नजदीक देश है अपना, रशियन इसमें था, उज्बेकिस्तान में गया था. तो वहाँ मुझे हमारी इंडियन कल्चर और सेंटर के जो हमारी संस्था है, उन्होंने भेजे हुए योग शिक्षक महिलाएं और पुरुष मुझे मिले. वहाँ कथक सिखाने वाली महिलाएं मिली और वो वहाँ के लड़कियों को पढ़ा रही थी. तो आजकल ये जो हमारी योग विज्ञान है, हमारा आयुर्वेद है, हमारा म्यूजिक है, अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स है, गायन है, उसके साथ हमारी विशेष रूप से नृत्य कलाएं हैं, तो ये इकोनॉमी के लिए भी आधार दे सकती है. अभी अमेरिका में अगर कोई कथक सिखाने वाली ट्रेन टीचर जाती है तो उसको बहुत अच्छा इनकम हो सकता है. अगर योग पढ़ाने वाली लड़कियां आपने तैयार की, और भाई यूनिवर्सिटी भी है कि जो इस प्रकार के कोर्सेज देती है, तो वो जा सकती है. आप जिम में ट्रेनर करके अच्छी महिलाएं काम करती है तो वो दे सकती है. तो क्या है कि हुनर कोई भी जब मिलता है तो हुनर हमारे लिए तो है ही है, उसका एक हमको समाधान मिलता ही है कलाकार के रूप में, जो भी उसके साथ काम करता है, और वो उसको रोजगार भी देता है. तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कला की साधना करते समय हम लोग रोजगार के रूप में भी देखें, और ऐसे तैयार किए हुए महिलाओं को हम लोग कहीं कोई छोटे छोटे कोर्सेज है, जैसे अभी आप कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली ऐसे महानगरों में, आपके बड़े बड़े शहरों में, अगर एक महिला, आप अगर एक छोटा सा, आजकल ये आईटी के कारण हमारी मीडिया इतनी स्ट्रांग हुई है कि मेरी छोटी सी एक घर में हमारे बेटी की लड़की है, केतकी करके, तो मोनिका को पता है. तो वो मेरे एक मामा है, अमरावती में रहते हैं, तो उनकी लड़की कथक की बहुत एक्सपर्ट है. तो वो रोज लैपटॉप लेके सुबह 1 घंटा बैठती है, 1.5 घंटा, और वो उसको कथक सिखाती है, और उससे वो सिखाकर वो बराबर करने लगी है. तो आज क्या है कि ये जो जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उसके आधार पर लोगों को कोई हुनर सिखाने के लिए, कला सिखाने के लिए, एक दूसरे को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए अगर हम मदद करते हैं तो ये उनको रोजगार हासिल होगा.
अभी रेसिपीज है अलग अलग प्रकार की। एक मैं हमारे यहाँ मोनिका की घर के पास कोई लड़की है, वो सैलड बनाती है और वो सैलड घर बेचती है। तो उसके घर के हम लोग सैलड जरूर कभी कभी बुलाते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ सैलड बनाती है, उसमें उसने इसी में ही कौशल्य हासिल किया है। तो वो सैलड का उसका अच्छा बिजनेस चल रहा है। तो आप ऐसी छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करके, देर आर टू थिंग्स, वन इज इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। इसमें हम नॉलेज कहते हैं, नॉलेज इज पावर एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये आपकी योजना के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट थिंग इज कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। हियर नॉलेज मीन्स स्किल्ड, नॉलेज मीन्स कला, फिर वो संगीत की हो, नृत्य की हो, अभिनय की हो, योग विज्ञान की हो, कोई रेसिपी बनाने की हो, कोई कपड़े में डिजाइन करने को, जो भी कोई आपको पता है, मेरे से ज्यादा आप इसमें काम करती है। तो कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ यानी उसी कला का उपयोग रोजगार में करने में हम तो लोगों को मदद कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। सेकेंड थिंग, वेस्ट टू वेल्थ, जो मेरा प्रिय विषय होता है। अभी हमारे यहाँ नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम टॉयलेट का पानी बेचने का, मैंने आइडिया आई थी 7-8 साल पहले मेरे माइंड में। और आपको ताज्जुब होगा कि हम शहर का टॉयलेट का पानी बेचकर 325 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नो वन इज वेस्ट, it is depending upon the vision, it is depending upon the appropriate leadership, it is depending upon the exposure which you are getting, on the basis of that you can convert waste into wealth. तो ये आजकल कोई वेस्ट नहीं है, अगर हर आदमी में कुछ ना कुछ हुनर होता है। अभी कोई लड़का या लड़की अंधी होती है तो उनकी दूसरी कुछ क्वालिटी होती है, वो दूसरे कुछ काम करती है। कोई पैर में दिव्यांग है तो वो अलग प्रकार के काम करते हैं। तो दिव्यांगों के लिए, विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए, अलग अलग युवक लड़कियों के लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ छोटे कोर्सेज तैयार करके आपके ऑर्गेनाइजेशन के वेब पोर्टल से उसके ट्रेनिंग भी देंगे तो काफी बड़े प्रमाण पर लोग सीखेंगे। अब छोटी सी चीज है, ऐसे अनेक है, आप में कोई एक्सपर्ट निकलेगी कि जो पैकेजिंग में काम कर रही है, कोई ऑर्नामेंट्स में काम कर रही है, कोई कपड़े में काम कर रही है, कोई आपकी कलकत्ता में तो रसगुल्ला बनाने का स्पेशल कोई टेक्निक होगा तो वो बता देगी, कोई आइसक्रीम बनाने का बताएगी। कोई आजकल मैं गया था एक दुकान में, ऐसे ही यहाँ नागपुर में गया था, तो ये कोविड के मैं जाता नहीं जनरली कभी। तो बाजू में एक केक का दुकान था, तो दो लड़कियां थी, वो मेरे पास आई, आग्रह किया, उन्हें अंदर लेके गई। और मैंने कहा आप क्या, तो वो बड़े अच्छे घर की थी दोनों भी। उन्होंने कहा मैं केक बनाती हूँ, लक्ष्मीवन चौक में, वही वो गोकुलपेट में उनके दोनों का बेकरी थी। और वो रोज केक, तो मैंने रोज बल्कि 30-40 केक बेचती है, 50-1 हजार का धंधा रोज करती है। वो अच्छा प्रॉफिट कमाती है, 4-5 लाख रुपए महीना कमाती है। अब कहीं ना कहीं जन्मदिन होता ही है रोज, तो रोज केक लगता ही है। तो उसको केक बनाने के इतने सुंदर सुंदर केक वो बनाए उसने। तो मुझे क्या लगता है कि हर व्यक्ति में कोई हुनर होता है, और इस हुनर को विकसित करना और उसको विकसित होने के लिए मदद करना, एक अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वैसे अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्ड ये भी होता है। और जिसको बिल्कुल ही नहीं, उसको स्किल्ड सिखाया जा सकता है। अभी मैं बीच में मैं भी सोशल वर्क करते रहता हूँ काफी। ये भंडारा जिले में हमारे यहाँ ये प्योर सिल्क की साड़ियाँ बनती है, कोसे की। तो मैं वो साड़ियाँ फिर वो लोगों को मदद करने के लिए, मैं जब मेरे यहाँ कोई आते तो मैं उनको देता था। तो अलग अलग प्रकार के लोग आते, तो मेरे यहाँ सुषमा स्वराज आई, सुमित्रा महाजन आई, फिर स्मृति ईरानी आई, निर्मला सीतारमन आई, तो हेमा मालिनी जी आई थी, प्रीति जिंटा आई, और काफी वो प्रियंका चोपड़ा एक बार आई थी। तो मैंने सबको साड़ी दी कि ये कोसे की हमारे गांव के लोगों ने की हुई है। अब वो साड़ी एक बार प्रीति जिंटा मुझे एयरपोर्ट पे मिली और मुझे बोल रही थी मुझे और दो, मेरी माँ को बहुत पसंद है। तो क्या होता है, उसके ऊपर ही वो साड़ी तैयार करके उसके ऊपर अगर आप नेचुरल कलर के प्रिंटिंग के डिजाइन तैयार करोगे तो वैल्यू एडिशन होगा। अब ये कला है, अभी जैसे जयपुर की रजई बनती है, उसी के डिफरेंट टाइप ऑफ रजई बनाने के कितने कितने स्किल लोगों में, महिलाओं में है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से आप आजकल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके महिलाओं को ट्रेनिंग करेंगे तो नॉलेज का भी ट्रेनिंग हो सकता है, नॉलेज की भी जानकारी दी सकती है।
देखो, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, ये तीन बातें मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये तीनों का आप लोगों में क्षमता है। हर कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, हर व्यक्ति की कोई ताकत है। किसी का कोई लॉ 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 में किया है, कोई डॉक्टर है, कोई कोई होटल चलाती होंगी। तो आप सबके अनुभव से अगर आपने उनको वो अगर दूसरे को सिखाती है तो वो अपने जीवन में ऐसे ही कामयाब हो सकते हैं। तो ये जो आइडिया है ये जरूर आप करिए, और आज के समय में बहुत इसकी आवश्यकता है। और इसलिए गांधी जी कहते थे, गांधी जी का एक प्रसिद्ध वाक्य था, वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के सहभाग से, सहयोग से हमको प्रोडक्शन करना है। केवल प्रोडक्शन किया और वो मशीन में तैयार हो गया और सब कितना भी एक्सपोर्ट हुआ, तो अगर बाकी लोगों को रोजगार नहीं मिला तो कैसे होगा। तो हमें समाज को बाय एंड लार्ज रोजगार कैसे निर्माण हो, इकोनॉमी कैसे बदले, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ये कैसे हो, हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान कैसे मिले, इस सूत्र पर हम हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करें, और भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान निर्माण हो, जहां एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो और इकोनॉमी मजबूत बने। यही उसकी संकल्पना है। Uh, Because I don't think many people know about your journey till today. So, friends, I'd like to share with you that as a young man, Nitinji began with kheti, switched to catering business, and then furniture. And then you were the first one to visualize and establish the cooperative department store, Purti. In his life, he has faced success and failure as a young entrepreneur. Sir, you have been an inspiration. So do share with us your thoughts for those of us who are right now coping with this difficult situation. I had heard you somewhere, you had said कि इस मौके पे दृढ़ता से ही रहना है. We shouldn't give up. We should keep pursuing and persevering. So उसके बारे में as an entrepreneur that you have had this long journey, your positive thoughts with us, please. और मैंने एक मित्र को कहा कि उधारी पे दो, तो बोले मैं उनको नहीं देता, आप अगर होगे तो दूंगा। फिर मैंने उसके साथ, मैं लॉ में था तो पार्टनरशिप की, और अलमारी और स्टील फर्नीचर बेचने का और कूलर का काम किया, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग किया। फिर मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। अब मेरा एक्सपर्टाइज तो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन में है। जैसे मुंबई पूरा हाईवे मैंने बनाया उस समय, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट जो मुंबई का है ये बनाया। फिर मैंने 55 फ्लाईओवर्स बनाए थे 95 2000 में। तो मेरा एक्सपर्टाइज आज मैं सब रोड ब्रिजेस पर, मैंने एग्रीकल्चर में मैं काम करता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग में करता हूँ। और मैंने, हमारे यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे थे, 10,000 किसान फार्मर सुसाइड्स हुए। तो मैंने तय किया कि उनके लिए मैं कुछ काम करूँ, और फिर मैंने वो शुगर फैक्ट्री खोली ताकि शुगर केन के कारण उनका इनकम बढ़े। उसमें काफी संकटें आई। अब मैं बायोफ्यूल पे काम कर रहा हूँ, इथेनॉल पर, फिर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, बाम्बू पर हमने काम किया। ऐसी बहुत सी चीजें मैं करता रहा कि जिसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस, इसमें फर्क है। तो मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में समाज में ये कैसे होगा। अभी मैं 1100 एकल विद्यालय चलाता हूँ जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। और ये गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली जहाँ नक्सलाइट बेल्ट है पूरा, वहाँ स्कूल चलाता हूँ। हमारे 950 टीचर है और 18,000 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। हम 1 रुपया सरकार से ग्रांट नहीं लेते। और ये पूरे एकल विद्यालय में हमारे टीचर वहाँ के बच्चों को सिखाने का काम करते हैं, नखून निकालना, कपड़े साफ करना, मैनर्स, एटिकेट्स, नॉलेज, अखबार पढ़ना, क्योंकि वो बहुत ही सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो ये करते करते मैं काफी प्रयोग करता हूँ। एग्रीकल्चर में एग्रो विजन हम करते हैं। फिर मैंने अभी जब एमपी बना तो मैंने सांस्कृतिक महोत्सव किया।
तो कम से कम 15 दिन यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम, रोज 50,000 60,000 लोग आते थे देखने के लिए। अलग प्रकार की कलाओं का उसमें हुआ। फिर मैंने क्रीड़ा महोत्सव किया, उसमें 60,000 लड़के लड़कियों ने भाग लिया। करीब 125 मैदानों पर कंपटीशन हुई। तो क्रीड़ा महोत्सव में एज ए स्पोर्ट्स की इसमें कैसे लोगों को मदद करें, तो ऐसा कई स्पोर्ट्स में, कई कल्चरल एक्टिविटीज में, कभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारे समाज के लोग आगे कैसे आए। तो मैं अक्सर एक बात याद रखता हूँ कि हमारे यहाँ, मैं आरएसएस से रिलेटेड था, हूँ अभी भी, तो हमारे यहाँ हमको एक सिखाया था, मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। हम लोगों की सेवा करते रहे, काम करते रहे। हमने पहले अपने जीवन में अपने परिवार की और अपनी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए, पर आखिर एक व्यक्ति को कितना लगता है, और फिर अपना पूरा होने के बाद हम समाज के उन शोषित पीड़ित दुखी लोग जो है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं और शरीर पर कपड़ा नहीं, उन लोगों के प्रति हम कुछ काम करें। तो उसका बड़ा आनंद आता है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री बना तो मैं ये साइकिल रिक्शा चलाने वाले लोग देखता था, तो मैंने तय किया कि मैं ये प्रथा नष्ट होनी चाहिए। तो 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे, तो मैंने वो मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा लाया, और आज करीब 50 से 60 लाख लोग साइकिल रिक्शा से उनको मुक्ति मिली। आदमी आदमी को खींचने का जो काम करता था वो अब बंद हुआ, और अब लोग ई रिक्शा चलाने लगे, अब लड़कियां भी चलाने लगी। तो मैं जिस भाव से सामाजिक संवेदनशीलता से काम करता था कि भाई ये बदलना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं, आदमी आदमी को खींचता है, तो आज उसका परिणाम दिख रहा है कि ई रिक्शा जो है, मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा आज बड़े शहरों में चलने लगा, लड़कियां भी चलाने लगी और सस्ता है। अनेक लोगों को रोजगार मिला, 500-600 रुपए 800 रुपए रोज के वो कमाते हैं। तो यही है कि हम लोग दीप से दीप जलाए, इस प्रकार से एक दूसरे को मदद करते करते आगे जाए, ये भाव होना चाहिए। आसमान फटा हुआ है, मेरी औकात नहीं है सब आसमान सिलाने की, पर मैं जितना जमता उतना थोड़ा बहुत काम करूं। जैसे कि एक बूंद ने अगर तय किया कि मैं सागर में जाऊंगा ही नहीं, तो सागर नहीं बन सकता। तो हर व्यक्ति जिसको जितना जमता है उतना अगर काम करेगा, तो इससे एक अच्छा सागर बन जाएगा। यही संकल्पना है, वही करते करते आया। मैं पॉलिटिक्स में आया, पर पॉलिटिक्स मेरा स्वभाव नहीं है। मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स को, राजकारण को राष्ट्रकारण, विकास कारण और समाज कारण मानना चाहिए। राजनीति को बृहत्तर राजनीति, लोकनीति और धर्म नीति के रूप में मानना चाहिए। सामाजिक सेवा करना, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, तो पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये मेरी कमिटमेंट रही और वो काम मैं करता रहा। अभी मैं काफी सामाजिक कार्य करता हूँ और मैं उसी को ही पॉलिटिक्स समझता हूँ, और एक सही अर्थ पॉलिटिक्स का ये है। पर दुर्भाग्य से पॉलिटिक्स का अर्थ हुआ पावर पॉलिटिक्स, जो आज हम देखते हैं रोज टीवी पर इधर उधर, वही उस वो पॉलिटिक्स लोगों को समझते थे। अब महात्मा गांधी भी पॉलिटिशियन थे, पंडित नेहरू भी थे, तिलक भी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो वो पॉलिटिक्स ये नहीं था जो हम देखते हैं। तो इसलिए उसकी परिभाषा अभी बदल गई है, और हम उसकी सही भाषा जो हमको मिली है उसके आधार पर हम काम करेंगे। तो वही सामाजिक कार्य, यही पॉलिटिकल कार्य ही है। और उस पॉलिटिक्स में सेवा, विकास, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इसमें अच्छा काम करना, यही सही पॉलिटिक्स का अर्थ है, ऐसा मेरा कन्विक्शन। Sir, whenever I have met you, whenever I've met you, I've always seen you surrounded by people from different walks of life and trying to solve their problems. You've always been very encouraging, very positive, and very energetic. Where do you get so much of energy from, and who inspires you so much? ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ भी सामाजिक कार्यकर्ता थी, और मैंने अपने लाइफ में अपनी कुछ बातें तय की। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं चुनाव जीता कि हारा। और मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर अच्छा लगा तो वोट दो, नहीं देना है तो मत दो। तो मैं कोई जन्म पर मुझे मुझे कोई ये करना ऐसा नहीं, पर लोग मेरे साथ आते हैं, मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर सभी प्रकार की लोग मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। समाज में अच्छा ही है, और मैं उसके लिए अपने से जो भी मेरी ताकत है, औकात है, हैसियत है,
मेरी ताकत पूरा कुछ बदलने की नहीं है। तो मैं छोटी छोटी बातों के साथ काम करते रहता हूँ, और जब लोगों के प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हैं तो मुझे बहुत समाधान मिलता है। मैंने करीब 12,000 से ज्यादा हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त करके दिए। अभी मैं एक मैंने 3 मशीन 4 मशीन लाई है, वो कैंसर डिटेक्ट करने वाली है, जो महिलाओं को छाती के लिए होता है। तो नागपुर और नागपुर जिले में इधर पकड़ के हमने 2 लाख महिलाओं का फ्री मेडिकल चेकअप किया। उसमें से करीब 2,000 महिलाएं कैंसर ग्रस्त निकली, उनको हॉस्पिटल लाने का पहुंचाने का काम किया। मैं अभी काफी ऐसे अनेक कामों में जो समाज के लिए आवश्यक है, उपयोगी है, ऐसे काम करते रहता हूँ। अभी हमने इस समय कोविड के इस पीरियड में ये अनाज की किटें बांटने का काम किया। करोड़ों रुपए का मटेरियल गरीब गरीब लोगों के घर पहुंचाया, ताकि वो बेचारे कोई भूखा न मरे। यही है कि हमने करते रहना चाहिए, और जब हम लोग गरीबों की सेवा करते हैं तो उनके आशीर्वाद मिलते हैं। मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था रेड लाइट कार में, पुलिस प्रोटेक्शन में। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा लड़का, सब हम बच गए। तो जो लोग कार को देखते थे वो बोलते थे संभव ही नहीं, कोई बच ही नहीं सकता। तो मुझे लोगों ने पूछा ये कैसे हुआ। तो मैंने कहा कि मैं जो हार्ट के ऑपरेशंस करता हूँ फ्री ऑफ चार्ज, सबकी मदद करता हूँ। वो लोग जब ऑपरेशन होने के बाद मेरे घर पे आते हैं, एक फूल मेरे हाथ में देते हैं और उनके आंखों में आंसू होते हैं। वो मुझे आशीर्वाद देके जाते हैं। ऐसे हजारों लाखों लोगों के आशीर्वादों के कारण ही मैं एक्सीडेंट से बचा हूँ। तो ये हमारे यहाँ कहते हैं कि अच्छा काम करो तो अच्छा फल मिलता है। तो और दूसरा, काम करने से फल की अपेक्षा मत रखो। तो काम, मेरी माँ भी उस समय थी, मैं अपना ये काम अपने हिसाब से करते रहता हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है कि मुझे कोई, मैं वो राजनीतिक दृष्टि से सोचता भी नहीं। मेरे आए हुए व्यक्ति को ना कभी मैं उसकी पार्टी पूछता हूँ, ना जात पूछता हूँ, पंथ पूछता हूँ, धर्म पूछता हूँ, ना भाषा पूछता हूँ। जो मेरे प्रिंसिपल में बैठता है वो काम करता हूँ। और मेरी आदत खराब है कि जो नहीं हो सकता वो मुंह पे नहीं बोल देता हूँ। मुझे आप 2-2 हजार लोग, जब मेरा मिलने का दिन होता है कार्यालय में, तो 2-2 हजार लोगों को मिलता हूँ। सुबह 9:30 से बैठता हूँ, दोपहर 3-3:30 बजे तक आखिरी व्यक्ति को मिलकर फिर घर जाके खाना खाता हूँ। और मैं ये पैशन के रूप में करता हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है। और जब किसी के दुख और दर्द को अगर दूर करने का अगर मौका मिलता है, मुझे लगता है कि उससे जो तसल्ली मिलती है, समाधान मिलता है, वो आदमी को बहुत बड़ी ताकत देता है, और वही उत्साह बढ़ाता है। सो नितिन जी, मुझे सुनने में आया था कि आपको कुछ कविता का शौक है या थोड़ा सा गाने का शौक है। आप कुछ हमें सुनाना चाहेंगे? मैं नहीं सुनाना चाहूंगा। मैं राइट। बाथरूम सिंगर हूँ, कविता और गाने सुनता हूँ। मैं बहुत कार्यक्रम संगीत के किया। अभी नितिन मुकेश के 2 बार कार्यक्रम किए थे। ओके। सब देश के सभी कलाकार, बड़े बड़े, लता मंगेशकर से लेकर तो ऑल सभी लोगों को नागपुर बुलाने के लिए। तो मैं संगीत में, कल्चरल एक्टिविटीज में सपोर्ट करता हूँ। मुझे यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल मिला, बेस्ट स्पीकर ऑफ मराठी करके। ओ वाओ। तो मेरा पहले से ही संबंध मेरा कल्चरल एक्टिविटीज से है। मैंने अभी सुरेश भट्ट करके उनके नाम से एक सभागृह बना है नागपुर में, 2,500 कैपेसिटी का है, और एयर कंडीशन है, और 5,000 रुपए में हम कल्चरल प्रोग्राम के लिए, मैंने आग्रह से कहा कि इनको लोगों को देना चाहिए। तो ये मेरी पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है, और मैं काम करता हूँ। आखिर मैं कोई बड़ा कलाकार नहीं हूँ, मैं बड़ा गायक हूँ। और आजकल गाने में इतनी चिंता होती है कि कोई भी तुरंत वीडियो तैयार करके मीडिया में चला जाए। तो आजकल उसके कारण मैं गा नहीं सकता। पर मैं संगीत का, साहित्य का, कविताओं का एक बहुत अच्छा उसका, यानी उसको मुझे अच्छा लगता है ये सब सुनने में, करने में। क्योंकि कल्चरल जो सांस्कृतिक आस्था है, कला है, वो हमारी ताकत है। इतिहास, संस्कृति और विरासत, इन तीन के आधार पर हमारा समाज खड़ा है। उसको आगे ले जाना, उसका आनंद लेना, ये सभी बहुत अच्छा है। अच्छी फिल्म देखना, अच्छा संगीत सुनना, अच्छा नाटक देखना, तो बहुत अच्छा है। और ये एक प्रकार से प्रबोधन के भी काम होते हैं। प्रबोधन, जो समाज का प्रबोधन है, इसमें से होता है। तो मुझे लगता है इसका निश्चित रूप से फायदा होगा। सो मुझे आपसे पूछना है नितिन जी, क्या आप हमें थोड़ा समय दे पाएंगे अभी फॉर एनी क्वेश्चंस? हमारी जो महिलाओं को पूछना है, एक काम करिए कि एक 5 क्वेश्चन दीजिए, छोटे छोटे पूछिए, क्योंकि मुझे फिर दूसरी पर भेसी है बाद में।
G. So, Apra, Manisha. Yeah, yes. So, Manisha, can we unmute the first person? मृदुला जी जी हाँ मेरी आवाज सुन पा रहे जी नमस्कार सर समाज के प्रति आपकी प्रतिबद्धता करते हुए से हम अभिभूत हुए सर मैं एक शिक्षिका हूँ विगत 27 वर्षों से महाविद्यालय में हिंदी और हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ा रही हूँ लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा की स्थिति वर्तमान और उसका भविष्य दोनों ही बहुत अस्पष्ट और अनिश्चितता में जूझ रहे हैं समझ नहीं आता क्या करे कहाँ जाएं टेक्नोलॉजी है सब तक पहुंच नहीं पाती लेकिन शिक्षा को भी सब तक पहुंचना ही पड़ेगा इस पर आप कृपया कुछ प्रकाश डालें देखिए, शिक्षा पर होने वाला एक्सपेंडिचर हमारे भविष्य के पीढ़ी को निर्माण करने के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है और आज हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और अच्छी फीस देने में अच्छी स्कूल, अच्छी कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है, बहुत संख्य लोगों में वो क्षमता नहीं है। और शिक्षा का जैसा सर्वत्रीकरण भी होना चाहिए वैसे शिक्षा में गुणवत्ता भी बढ़नी चाहिए और गुणवत्ता बढ़ने के लिए धीरे धीरे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आई बड़े प्रमाण पर, डीम्ड यूनिवर्सिटीज आई, अभी पब्लिक स्कूल्स बनी, सीबीएसई के कोर्सेस वाली स्कूल बनी है और इसमें निश्चित रूप से काफी फीस भी ज्यादा होती है। तो एक प्रकार से निश्चित रूप से इसमें अनेक अड़चने भी है। सरकार की भी अपनी मर्यादा है, सरकार इतना पैसा नहीं दे सकती। मैं आपको एक बात इतना ही कहूंगा कि हमें जितना अच्छा व्हाट एवर द बेस्ट पॉसिबल फॉर अस, हम अच्छी डिलीवरी करते रहे और चलते रहे और हमारे सोच के जब लाखों लोग तैयार होंगे तो गुणात्मक परिवर्तन होगा। धीरे धीरे सुधार हो रहा है, अनेक डोनर्स आगे आ रहे हैं, वो अच्छी अच्छी स्कूलें खोल रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं और लोगों को अच्छी पढ़ाई देने का काम कर रहे हैं। समाज से ही लोग आएंगे और समाज के लिए ही देंगे और ये प्रक्रिया चल रही है, इसकी गति बढ़ेगी और जब समाज में ऐसे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, आप जैसी सोच रहे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी तो गुणात्मक परिवर्तन होगा, क्वालिटेटिव चेंज होगा और ये धीरे धीरे हो रहा है। इसकी गति बढ़नी चाहिए, यही आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के मन की अपेक्षा है। निश्चित रूप से ये गति बढ़ेगी और हमें इसमें अच्छा परिवर्तन दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर मल्लिका जी प्लीज Good evening, Mr. Gadkari. It's always a pleasure to hear you and hear your views on what is going on. My question to you is, as digital technologies also take a prominent role in cultural experiences, now is a time when we all think about how to reopen institutions. How has the government prepared to bring these institutions back into society? Actually, 100% जो ये कह रही है बरखा जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री और आईटी में अब इतना डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं था और कोविड-19 ने, मैं बोलता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बातें बहुत होती है। कोविड-19 में मैंने ये सोशल मीडिया पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से लोगों से संवाद किया तो अभी मैं 25 करोड़ से ज्यादा लोगों से संवाद कर चुका हूं। अभी मैंने पॉलिटिकल रैली की, गुजरात की रैली की तो 80 लाख लोगों ने देखा उस दिन भाषण में। वाह। फिर मैंने राजस्थान की वो भी 70 लाख लोगों ने देखा। मध्य प्रदेश की वो भी करीब 70 लाख लोगों ने देखा। फिर मैंने टीवी के इंटरव्यू दिए, वो भी अनेक लोग। कल मैं अमेरिका में, हमने यूके के करीब 10,000 बिजनेसमैन के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। एक 4 दिन पहले फिलिप कैपिटल ने मेरा अमेरिका में कम से कम 15-20 हजार लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ। कल मैंने एक सूरत में एक महावीर जैन यूनिवर्सिटी है, उनका कार्यक्रम किया जो एग्जीबिशन और लड़कों के लिए था, तो मुझे 1,70,000 लोगों ने देखा। तो रोज मैं देख रहा हूं तो अब ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर से जाओ, सभा करो, व्यासपीठ में खड़े हो, इसके बजाय हम लोग घर से ही सब कर सकते हैं।
तो ये आपने बिल्कुल सही बात की कि क्या एजुकेशन में ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर सकते हैं क्या। अभी हम लोग पूरे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को पेपरलेस करके डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉट ऑफ काफी निर्णय हमने लिए हैं। तो आपको, आपके ट्रस्ट को और आपके सभी मित्रों को मैं कहूंगा कि आप भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अनेक चीजों को कैसे लोगों तक ले जा सकते हैं, और विशेष रूप से एजुकेशन, स्किल, इस क्षेत्र में हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम कैसा उपयोग करें। तो मुझे लगता है कि आप में से कोई महिला रिटायर्ड हुई है टेंचर करके, तो घर में बैठकर वो उसके अनुभव के आधार पर और एक अच्छा क्लास चलाकर लड़के लड़कियों को सिखा सकती है डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। तो अब इसमें खूब इनोवेशन है, अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट नए नए आए हैं, और हम लोग ये इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर हम शिक्षा का काम करेंगे तो खूब फायदा होगा। अब मोबाइल फोन सबके पास आ गए। अभी मैंने कल एक किसानों के लिए फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज का एक वेबिनार किया था, और ये विदर्भ का ही था। तो 1,70,000 लोगों से मेरी चर्चा हुई, किसान, तो वो भी उनके पास मोबाइल फोन है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं आज तक मैंने इस फील्ड को, मैंने भी इसके तरफ ध्यान नहीं दिया था, मुझे नहीं जमता था ये, पर मजबूरी के कारण ये जो परिस्थितियां आई तो मैं इससे फैमिलियर हो गया। अब देखते देखते मेरा इतना फैन क्लब बड़ा मेरे इस पे कि अब सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और इस पर कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं कि काफी संख्या बड़ी हो गई। तो करोड़ों लोगों से मुझे संपर्क करने का फायदा हुआ। तो अब मैं वही मानता हूँ कि हम लोग क्या शिक्षा के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपके वहाँ एक कोई महिला जिसमें जिसको स्किल है, जो कोई अच्छे फूड के आइटम अच्छे बना सकती है, तो वो अगर एक बार उसका प्रेजेंटेशन करके एक 10,000 महिलाएं देखती है और उसी फॉर्मूले पर वो अपने यहाँ करेगी तो फायदा होगा। मैं भी आजकल यूट्यूब पर ये फूड आइटम बनाने वाले देखता हूँ, और फिर मैं बताता हूँ ये सैलड ऐसा, गूगल में जाओ देखो कि कैसे, वेजिटेरियन है हम लोग, तो वेज सैलड कैसे बनेगा, पनीर का कैसा किया है, ये दाल कैसी बनी है। तो आजकल क्या हुआ कि नॉलेज इज ए पावर, और नॉलेज लेने के लिए ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ये बहुत आसान और सस्ता हो गया है। तो मुझे लगता है आप जैसे लोगों ने इसके साथ भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जो आपके मन का भाव है, विचार है, उसके आधार पर जब काम किया तो आप 1000 गुना ज्यादा काम समाज के लिए कर सकोगी जो आप प्रैक्टिकल जाके बुला कर करोगी। पर एक बात जरूर है जो याद रखना, कि केवल हम लोग मैकेनाइज और इस प्रकार के सिस्टम के अधीन होंगे तो ये ठीक है, अच्छी बात है, पर एक बात जरूर रखना कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सोशल वर्क, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। हमारे व्यक्तिगत अच्छे संबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे रिलेशनशिप खत्म हो जाए और हम केवल टेक्नोलॉजी के साथ बैठे। तो टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना और रिलेशनशिप को भी मजबूत रखना, आपस में मिलना, बात करना, चर्चा करना, साथ में खाना खाना, साथ में आनंद लेना, पिक्चर देखना, खेल देखना, नाटक देखना, कला का आनंद लेना, ये भी एक अलग प्रकार का है। तो आपको कौन सा मर्यादा, किस मर्यादा का, जैसे आप अचार बनाएंगे तो आपको पता है कि कौन सा मसाला डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। एक भी एक्सेस हो जाएगा तो खाने लायक नहीं रहेगा वो। तो इस प्रकार से लाइफ में भी हमको कौन सी चीज कितने प्रोपोर्शन में चाहिए, इसके बारे का विवेक जो है वो भी उसका उपयोग करके जाएंगे तो फायदा होगा। Thank you very much, sir. Thank you. सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी। Sir, theaters, art studios have all been shut, but we see that there is an increase in OTT platforms, the content there, और जैसे कि आपने बोला कि टेक्नोलॉजी में भी है। So many a times crises do get negative impact, but also they have a lot of positive opportunities. How do you see this statement in terms of cultural and creative industries? देखिए, मैं अक्सर एक बात का उपयोग बार बार करता हूँ, देयर आर सम पीपल who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems. आपके सवाल में ही आपका जवाब है। और मैं जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलता हूँ, हर चीज की एक्शन एंड रिएक्शन होती है। हर संकट में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये बिल्कुल सही बात है। अब जैसे मैं आपको तो, हमारा कोऑपरेटिव में स्टोर है,
नागपुर में 2 बड़े बड़े स्टोर है। मैं तो उसका कोई काम नहीं करता, उसकी बॉडी है। हम लोग 4000 लोगों ने मिलकर वो स्टोर शुरू किया है। वो किसी का मालकी का नहीं है, कोऑपरेटिव है, पूर्ति सुपर बाजार। अब वहां मुझे कल उसने बताया कि एक ही दिन में हमारा टर्नओवर 29 लाख हुआ। अभी हम लोग 50 से 60 लाख करोड़ का टर्नओवर करते, 2 हमारे स्टोर है। तो ये जो कोविड आया तो इसमें हमारा टर्नओवर 3 गुना बढ़ा। तो वो मुझे बता रहे थे हमारे लोग सब कि भाई देखो, कोविड के कारण हमारा फायदा हुआ, और ज्यादा दिन रहेगा तो हमें और अच्छा बड़ा टर्नओवर मिलेगा। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक के नुकसान में दूसरे का फायदा होता है। तो हम लोग हर बुरे चीज से अच्छी चीज कैसे निकले। जैसे वो होता है ना, दूध और पानी मिक्स कर दिया, तो बगुला होता है वो केवल दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। तो हम अच्छाई को देखते जाए, उसको लेते जाए और आगे चले। तो मुझे लगता है इसमें आप इस समय इसका उपयोग करके, जैसे आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि संगीत के कला के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी में आपको, मेरी बहू है, वो एक बाल रंग भूमि की छोटे बच्चों की इसकी अध्यक्षा है। तो उन्होंने एक स्पर्धा बनाई कि जो 3 साल के लड़के, 3 साल तक है, 3 से 5 है, 5 से 7 है, तो उन्होंने घर में ही, उनके माता पिता ने उनके एक वीडियो बनाना चाहिए कल्चरल प्रोग्राम का, और उन्होंने भेजना चाहिए एक जगह पूरे। और फिर उसके परीक्षक थे, एग्जामिनर, उन्होंने उसके ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड दिए। तो घर में बैठकर इतनी बड़ी स्पर्धा हुई कि हजारों लड़के लड़कियों ने उसमें भाग लिया। तो ये कुछ पैसा भी लगा नहीं ना कुछ लगा। आप ऐसे अभी जैसे फैंसी ड्रेस है कुछ, या कुछ ऐसी कंपटीशन है, तो आपने कहा आपके घर में आप ही आओ, चल दो, आपका वीडियो निकालो और इस वेबसाइट पे इस तारीख तक, इस इतने बजे तक भेज दो, तो सबका आ जाएगा। फिर आप एक परीक्षक मंडल को बोलो कि भाई ये देखो आप किसके कपड़े अच्छे हैं, कौन अच्छी है, कौन ज्यादा सुंदर है, तो उसका क्राइटेरिया देख के उसको अवार्ड देंगे, और वो भी अवार्ड आप डिजिटली डिक्लेयर कर दोगे। तो ये समय का उपयोग करके हम लोग इनोवेटिव अप्रोच से बहुत सी बातें कर सकते हैं, और आप जरूर करिए। आखिर इसके कारण तो हमारा कल्चर तो बढ़ा ही ना। आपने कोई ऐसी स्पर्धा की तो घर में कोई प्रैक्टिस करेगा, प्रेजेंटेशन करेगा, तैयारी करेगा ना, उसके हुनर को विकसित किए बिना तो वो तुरंत आपके पास नहीं आएगा। तो इसी से कला के गुणों का बढ़ाव होगा। तो ये दिस कैन बी गुड आइडिया। इसी प्रकार से आप एक बार जब चलने लगोगे, तो ये चलना ऐसा होता है कि मैं तो चला जिधर चले रास्ता। अगर एक बार चलना शुरू करोगे तो रास्ता आपोआप मिल जाता है, और आप अंतिम उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। प्रोसेसिंग होना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चरैवती चरैवती, यही है। तो निश्चित रूप से मार्ग मिलता है और हम लोग कुछ कर सकते हैं। So thank you so very much. On this note, I'd like to propose the formal vote of thanks. Our deepest gratitude to you, Honorable Cabinet Minister Shri Nitin Gadkari ji. Thank you so much for your time and for sharing valuable information on various subjects. I'm sure we all will go back from here as more enlightened and inspired. And as you said that about 3 C's, cooperation, coordination, and communication, I at this junction would like to share that there is another C which Ehsaas women from Prabha Khaitan Foundation believe in, and that is care and commitment towards culture. It is our utmost commitment which we want so that we can knit into a beautiful and a more inclusive society. On this junction, may I request you to kindly help us guide to get connected to various cultural zones of India, because as you said that you're a social entrepreneur, sir, many of us are social entrepreneurs and we'd like to give back to the society. So your guidance on getting connected to various cultural zones of India will help us to take it ahead. Right. Thank you. Yeah. Namaskar. Thank you so much, Monica. Thank you so much to all Ehsaas women. Right. Thank you. Thank you, Nitin ji. Thank you. Thank you.